Our immune system is so complex and organically connected. This time, we are going to introduce Adame's functional raw material, Hemohim angelica, and other mixed extracts. As a result of human application test of the functional raw material, Hemohim angelica, and other mixed extracts, NK cell activation, improved cytokine production, immune cell activation was confirmed. Hemohim angelica and other mixed extracts have been recognized as a health functional food ingredient that can aid in improving immune function. From now on, we will tell you immunity-related health information. Why is immune function important? Immunity is our body's own defense system. The immune function recognizes harmful substances and removes them. Immune function is very important because it plays a decisive role, not
not only in maintaining homeostasis of the body, but also in promoting health. Recording in progress. Next, NK cells are white blood cells that are responsible for innate immunity and are cells that recognize virus-infected or stressed cells and directly kill them. Changes in NK cell activity are a criterion for judging whether immune function is enhanced or not. Cytokines are proteins secreted by cells involved in innate and adaptive immunity. It's responsible for the regulation of various functions of immune cells. Immunity. Are you feeling it now? Experience the new power of immunity now. Only for immunity. Atomy Hemohim. Atomy Hemohim's birth behind the scenes. Are you curious? From now on, we will tell you in detail. Atomy Hemohim was born in Korea Atomic Energy Research Institute. A total of 50 billion won was spent on research. Biotechnology researchers participated. Angelica, Snidium, Peony. To discover these three combinations and find the optimal ratio took 8 years. In 2006, it was finally recognized as the #1 raw material that can aid in improving immune function. Atomy Hemohim was born in this way. After a long period of research, it was created with a taste that's easy for everyone to consume. At first, Hemohim had a hard time attracting many people. At that time, Atomy appeared and started selling 30 pouches for 70,000 won. And each time the profit increased, the number of pouches increased to 48, 54, and now 60. In addition, the price has been lowered to 1/10 of the original price. Thanks to that, more consumers wanted to purchase Atomy Hemohim, and now it stands tall as Atomy Hemohim. What kind of legacy will Hemohim continue to create in the future? Only for immunity. Atomy Hemohim. The Korea Atomic Energy Research Institute conducted an 8-year government-sponsored research and discovered a unique combination exclusively for immunity. Atomy Hemohim.
हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को मेरी तरफ से मैं डॉक्टर स्वाति आज मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। एक्चुअली हमारे इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल्स होते रहते हैं ना, जैसे कि आज हम मकर संक्रांति मना रहे हैं, कल कहीं पे लोहड़ी मनाई गई, या आज ही के दिन कहीं पे बिहू मनाया जा रहा है तो कहीं पोंगल। अल्टीमेटली एम एक ही है ना, नेचर से कनेक्टेड रहना। जी हाँ, ये जो पर्व है मकर संक्रांति का, उसमें जो नई फसल आई हुई होती है उसको हम यूटिलाइज करते हैं, है ना, और भगवान को मतलब जो भी एक शक्ति है उसको हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं कि थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये सब एंजॉय करने के लिए दे दिया। यही शायद इस हर फेस्टिवल के पीछे रीजन है। जैसे काफी सारे फेस्टिवल्स, लेकिन एम एक ही है, टू फील द ग्रेटिट्यूड। वैसे ही एटमी में काफी सारे न्यूट्रासिटिकल्स है, एम एक ही है, टू बी हेल्दी। है ना मजेदार बात। इसका मतलब यह है कि एटमी कहीं ना कहीं नेचर से जुड़ी हुई है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर स्वाति, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ और पिछले 28 साल से मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के तौर पे काम कर रही हूँ। आयुर्वेदिक ऑन्कोलॉजिस्ट करके मैंने अपने आप को ग्रूम किया है। उसी के साथ लाइफस्टाइल डिसीजेस जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, बीपी, उसके बाद इनफर्टिलिटी, अर्थराइटिस, ओबेसिटी, इवन कैंसर जैसे लाइफस्टाइल डिसीजेस को परमानेंट सॉल्यूशन देने का काम कर रही हूँ। 2011 में आयुर्वेद रत्न ये पुरस्कार प्राप्त हो चुका है और मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हुए परमानेंट सॉल्यूशन देने का काम कर रही हूँ। साथ ही में मैं नाड़ी परीक्षण में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और अब एटमी के साथ जुड़कर वुमन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हूँ, थैंक्स टू एटमी। सो कम टू द पॉइंट नाउ। ये एटमी का मिल्क थिसल आप सबके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है और मिल्क थिसल के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। एक्चुअली ना, जब मैं पढ़ती थी 30 साल पहले, तो 30-35 साल पहले, तो ऐसा होता था कि लीवर के बारे में इतना ज्यादा हम कॉशियस नहीं थे। मतलब बहुत थोड़ा सा ध्यान दिया करते थे कि लीवर की प्रॉब्लम क्या ही आने वाली है। लेकिन आज सिनेरियो कंप्लीट अलग है। तब 30-35 साल पहले उतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं था, उतने ज्यादा केमिकल्स हम कंज्यूम नहीं करते थे, तो हो सकता था कि उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन आज हर एक को पता चल रहा है कि लीवर ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और उसको संभालना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज 10 में से 7 लोगों को फैटी लिवर सेल्स की परेशानी है। जरा स्टैटिस्टिक देखते हैं इसका क्या है। एक मिनट है। सी आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ओ माय गॉड, 5 में से 1 लिवर डिसीज से डेथ हो रही है ग्लोबली। हाँ, और इंडिया में 5 में से 2 लोगों को लिवर डिसीज है। लिवर डिसीज अलग अलग टाइप के होते हैं। ALD जो कि अल्कोहलिक लिवर डिसीजेस कहते हैं, जो सिर्फ अल्कोहल लेने से होते हैं। और दूसरा एक पार्ट आता है NAFLD, मतलब नॉन अल्कोहल फैटी लिवर डिसीज। ये हम में से हर एक को होने वाला है। जी हाँ, घबराइए नहीं, लेकिन इसके बारे में अवेयर रहना बहुत जरूरी है। क्यों होने वाला है? क्योंकि हमारे खाने के थाली में एक भी अनाज का दाना ऐसा नहीं है जो केमिकल फ्री हो, फर्टिलाइजर फ्री हो। और हमारा लीवर ऐसा काम करता है। कैसे कैसे काम करता है हम आगे चल के डिटेल में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे बताना जरूरी ये लग रहा है कि जो भी केमिकल्स है वो सबसे पहले अफेक्ट करते हैं लीवर को, और उसकी वजह से आज लीवर बहुत ज्यादा डैमेज
कंडीशन में जा रहा है। ओके, उसके बाद हेपेटाइटिस बी आपने सुना होगा। एक बार हेपेटाइटिस बी हो गया तो उसके ऊपर कुछ भी सोल्यूशन नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसा सिर्फ एलोपैथी के लोग कहते हैं क्योंकि उनके पास सच में नहीं है, बट हमारे पास है, आयुर्वेदा में है, न्यूट्रास्यूटिकल्स जो यूज कर रहे हैं उनके पास है और बेहतरीन रिजल्ट्स इसके आ सकते हैं। ओके, उसके साथ ही सिरोसिस, फाइब्रोसिस, नेक्रोसिस, ये अलग अलग उसके टाइप्स है। तो ये जो लिवर डिसीजेस है उसकी वजह से बहुत ज्यादा हम हैम्पर होते जा रहे हैं। लिवर डिसीज की वजह से नहीं, आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हम अपने लिवर को ज्यादा हैम्पर करते जा रहे हैं। देखते हैं कि ये लिवर है क्या और किस तरीके से काम करता है। ये हमारे बॉडी में सबसे बड़ा अगर ऑर्गन कौन सा है तो ये लिवर है। इसके 2 लोब्स होते हैं और इसमें एक स्पेशलिटी पता है क्या है कि अगर आप इसका कुछ पार्ट निकाल दिया गया तो वो फिर से पनपने लगता है, फिर से ग्रोथ होने लगती है उसकी। इसका मतलब ही ये है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई भी हार्ट का अगर कुछ पार्ट डैमेज हो गया तो वहां पे फिर से डेवलप नहीं होता है। सुना है आपने कभी? नहीं होता है। इंटेस्टाइन, किडनीज, किसी का भी नहीं होता, सिर्फ लीवर का होता है। इसका मतलब भी ये है कि लीवर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा पार्ट है, हमारा ऑर्गन है। ये कहाँ पे होता है? राइट साइड में, मतलब स्टमक के नीचे, डायफ्राग्राम के बिल्कुल नीचे राइट साइड में होता है और इसके 2 लोब्स होते हैं और ये इसका वजन अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 किलो वजन इसका होता है हर एक के बॉडी के अनुसार। ओके, और इसकी कैपेसिटी है रिजनरेट होने की, अभी मैंने बताया। और ये बेहतरीन मेटाबॉलिक हब है। यस, मेटाबॉलिक हब मतलब जहां पे मेटाबॉलिज्म का पूरा नियंत्रण, हमारे बॉडी में कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म ये 2 प्रोसेस होते रहते हैं, संघटन और विघटन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूंगी कि हम निवाला मुंह में डालते हैं तो उसका विघटन होना शुरू हो जाता है और फिर सिंथेसिस होके, मतलब उसका संघटन होके आगे बढ़ता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक प्रोसेस होते रहती है जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म जो इसमें मेटाबॉलिज्म होता है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं या न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसका मेटाबॉलिज्म इसमें होना जरूरी है और वो होता है लिवर के अंदर। मेटाबॉलिज्म अगर नहीं हुआ, मेटाबॉलिज्म का इंपॉर्टेंस क्या है वो देखो, हम सब्जी रोटी दाल चावल खाते हैं, हमें ऐसे दिखता है क्या, अरे देखो ये सब्जी जा रही है, ये जा रहा है, चावल जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। उसका कन्वर्शन किया जाता है और उसका कन्वर्शन करने के बाद जो एब्जॉर्ब होता है ना, उसे कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और ये हमारे बॉडी में जो भी हम न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है और ये काम सिर्फ और सिर्फ लीवर की वजह से होता है। हम कितना भी खाएं और लीवर अगर आपका डैमेज है तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और ये एब्जॉर्प्शन अगर नहीं होगा तो हमें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिलेंगे। इस सिंथेसिस में क्या क्या होता है थोड़ा सा बताना चाहूंगी मैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स जो है उसका कन्वर्शन एनर्जी में हो जाता है, इसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। उसी के साथ ग्लाइकोज जो होता है वो हमारे लिवर में स्टोरेज के तौर पे रहता है और उसको रेगुलेशन में भी लाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारे लिवर की होती है। एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं प्रॉपरली और बहुत फोर्सफुली कहना चाहूंगी कि लीवर सेल्स अगर नॉर्मल है तो ही ये एब्जॉर्प्शन हो सकता है। अगर उसके ऊपर फैटी लिवर सेल्स डेवलप हो जाते हैं तो हमारा एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इसका मतलब ही ये है कि अगर आपको विटामिन डेफिशिएंसी हो गई है तो सिर्फ विटामिन के टैबलेट्स लेने से फायदा नहीं होगा, आपको फैक्ट्री पे जाना पड़ेगा जहां पे ये एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है, वो सही है या नहीं
ये देखना बहुत जरूरी है। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता है ना कि हम क्या करते हैं, अच्छा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है तो चलो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है हमारे बाकी, जैसे कि स्पारुलिना है, शिलाजीत है, मोरिंगा है, हीमोहिम है, एवरीथिंग, तो वो डायरेक्टली हम लेना शुरू कर देते हैं। बट उसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए या जो भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन तैयार होने के लिए या मेटाबॉलिक एक्टिविटी दुरुस्त होने के लिए हमें लीवर ठीक है क्या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी होता है। तो इतना इम्पोर्टेंट है लीवर का काम कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से हो जाए। आगे चल के इसका अगर फंक्शन में दे आपको बता दूं तो सिंथेसिस मीन्स टू मेक, ये हार्मोन्स तैयार करने के लिए रीजनेबल रहता है। उसके बाद प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम सिक्रेशन होते रहता है ना, वो कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, उसका लीवर में होता है। एंजाइम्स मतलब पाचक स्त्राव, जो हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स लगते हैं और वो एंजाइम्स हमारे लीवर में तैयार हो जाते हैं। आप ही बताइए, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जहां से हम कुछ रिजनरेट कर रहे हैं या तैयार कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन हो रहा है और वो मशीन ही खराब है, तो प्रोडक्शन ठीक से हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए लीवर की तरफ ध्यान देना बेहद जरूरी है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं सेक्रेटरी मतलब डाइजेस्टिव, अभी मैंने बताया कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं, बाइल जो होता है जिसे हम मराठी में पाचक पित्त बोलते हैं, तो वो जो है बाइल डक्ट से वो बाइल बाहर निकाल की जो सिक्रेट करने की जो प्रोसेस होती है वो सिर्फ और सिर्फ लीवर की वजह से होती है। अब ये सिंथेसिस में प्रोटीन जब आता है ना, तब इसमें क्या क्या होता है, अल्बुमिन, देन प्लाज्मा प्रोटीन होता है इसमें, जैसे कि अल्बुमिन जैसा आपने देखा होगा बहुत सारे मतलब जब भी कोई इंसान इलनेस में जाता है तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स किए जाते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि अल्बुमिन बढ़ गया है तो इमीडिएटली डॉक्टर बोलते हैं कि थोड़ा सा लिपिड का भी सिंथेसिस होता है। लिपिड मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल, इसका भी सिंथेसिस होता ही रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो प्रोग्रामिंग है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन ये इतना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में और वो होता है हमारे लीवर की वजह से। देखो हम घर पे रहते हैं, रोज झाड़ू मारते हैं ना घर में, ऐसे ही होता है कि नहीं आज साफ सफाई नहीं की तो हमें अच्छा लगता है? नहीं। तो वैसा ही काम हमारे पूरे बॉडी में अगर कौन कर रहा है तो हमारा लीवर कर रहा है। पूरी बॉडी की जितनी भी गंदगी है वो अपने पास ले लेता है और वहां से वो एक्सेल कर देता है। ये एक अनोखी क्षमता है हमारे लीवर में। अब ये लीवर का काम कब होता है, ध्यान से सुनिएगा। हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, रात के 11 बजे से 3 बजे तक ये लीवर हमारा ये काम करते रहता है टू एक्सेल ऑल द टॉक्सिन्स। और ऐसे में अगर आप सो रहे हो तो इसका काम इजी हो जाता है। लेकिन अगर उस वक्त आप कुछ काम कर रहे हो या स्क्रीन के ऊपर हो, मोबाइल के साथ हो या फिर अपने लैपटॉप के साथ हो, तो पूरी की पूरी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपके ब्रेन की तरफ जाती है और लीवर का जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम है वो बंद हो जाता है और पूरे के पूरे टॉक्सिन्स वैसे ही हमारे बॉडी में अकुमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। और मैंने एक बार नहीं, हर एपिसोड में, हर प्रोडक्ट ट्रेनिंग में मैं बताती हूँ कि कोई भी डिसीज 2 कंडीशंस की वजह से होती है, एक लैक ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा अकुमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स। और ये अकुमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स जब शुरू होने लगता है तो हमारे हर डिसीज कंडीशन की शुरुआत होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स,
प्लीज प्लीज 11 से 3 सोने का प्रयास करिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं 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 12-1 बजे से पहले तो मैं तो सोता ही नहीं। उसको पूछो कि आपका बॉयल कैसा है, उनसे पूछो कि आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनसे पूछो आपका हेयर फॉल तो नहीं हो रहा है, उनसे पूछो कि आपका एनर्जी लेवल कैसा है। तो आपको ये पता चलेगा कि ये टॉक्सिन्स पूरे वैसे के वैसे अकोमुलेट होने की वजह से हर एक डिसीज कंडीशन को वो न्यूनता दे रहा है, इन्विटेशन दे रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें अगर सही करनी है तो हमारी भी कोई जिम्मेदारियां होती है लीवर को प्रोटेक्ट करने की। इसीलिए तो आज मिल्क थिसल के बारे में हमने जानना उचित समझा। डिटॉक्सिफिकेशन ये तो हो गया, साथ ही में इसमें स्टोरेज का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें क्या क्या स्टोर होता है? ग्लाइकोजन स्टोर होता है, आयरन स्टोर होता है और विटामिन स्टोर होते हैं। ग्लाइकोजन का मतलब क्या है? जो भी एक्सेस शुगर होती है हमारे बॉडी में उसको वो प्रिजर्व करके रखता है, स्टोर करके रखता है। आपको जब भी खाना नहीं मिलेगा या फिर आपको उपवास होता है या फिर किसी काम की वजह से आप टाइम पे खाना नहीं खा सकते हो, तब आपके बॉडी को जो फ्यूल चाहिए होता है ग्लूकोज के माध्यम से, वो ये ग्लाइकोजन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये स्टोरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए जब भी आपको वेट रिडक्शन करना है या आपके कैलोरीज को बर्न करना है, तब क्या किया जाता है? स्टारवेशन पे रखते हैं, कम खाना खाया जाता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में जो भी डिपॉजिटेड ग्लाइकोजन है उसको यूटिलाइज करें। कितना बेहतरीन क्राइटेरिया है ये। मतलब उसके बाद आयरन भी इसमें स्टोरेज होता है। आयरन स्टोरेज की वजह से ये होता है कि वहां पे जो भी फॉलिक एसिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको स्टोर किया जाता है, और जब आरबीसीज फॉर्मेशन होता है, आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है, तब ये आयरन और O2 ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स उसके साथ बनकर हीमोग्लोबिन बनता है। इसीलिए जब भी एनीमिक कंडीशन हो तब सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके लिवर की कंडीशन कैसी है। सिर्फ फॉलिक एसिड लेने से ये नहीं होगा। विटामिन, वो भी कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं। वो कौन से हैं? विटामिन B12 है, A, D, E, K, ये जो विटामिन है ये सारे इसमें स्टोर किए जाते हैं, और जैसे जैसे उसकी जरूरत पड़े वैसे वैसे उसको बाहर निकाला जाता है। ओके, तो ये इतने इंपॉर्टेंट काम के साथ लीवर हमारे साथ काम करता है। अब देखते हैं कि अगर लीवर अनहेल्दी हो जाए तो एग्जैक्टली कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी आपको कि लीवर किस वजह से डैमेज होता है। खैर नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। ये अनहेल्दी लीवर जो है ना, ये इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। आपके आईज थोड़े से येलोइश दिखाई देने लगते हैं, स्किन इची लगने लगती है, मतलब खुजली आने लगती है विदाउट एनी रीजन, डार्क कलर की यूरिनेशन होने लगती है, आपके पैरों के ऊपर थोड़ा सा स्वेलिंग आने लगता है, एंकल्स के वहां पे बहुत जल्दी फटीग हो जाते हो, और भूख नहीं लगती है, नॉशिया या वॉमिटिंग जैसा फीलिंग आता है, एब्डोमिनल पेन होता है या स्वेलिंग रहती है, या फिर अनएक्सपेक्टेडली मतलब विदाउट एनी रीजन या तो आपका वजन बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। मतलब आप बहुत ज्यादा खा पी नहीं रहे हो लेकिन आपका वजन बढ़ रहा है। ऐसे कंडीशन में देखना है कि लीवर आपका सही काम कर रहा है क्या। और अगर आपका विदाउट एनी रीजन खान पान सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी आपका वेट रिड्यूस हो रहा है, तब भी आपको चेक करना चाहिए कि आपका लीवर सही है या नहीं है, क्योंकि ये अनहेल्दी लीवर के साइंस हो सकते हैं। मेन रीजन हमारे लीवर का डैमेज या लीवर कमजोर होने के लिए मेन रीजन क्या है? तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसकी ठीक चल रही है या नहीं। क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा लीवर डैमेज होने के लाइन पे लग जाता है? ओवरवेट और ओबेसिटी। बहुत ज्यादा वेट अगर हो गया है आपका तो उनका लीवर 100% डैमेज होने वाला है। हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर,
हाई ब्लड लिपिड्स मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना, या कुछ मेडिकेशंस या जेनेटिक कंडीशंस। कुछ मेडिकेशंस इतना ही दिया है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे खान पान में हमारे मतलब एक भी दाना केमिकल फ्री नहीं है। एक भी फ्रूट आपके पास कार्बाइड से गुजर कर नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब इतने ज्यादा केमिकल्स हैं और वो सारे के सारे अक्युमुलेट हो रहे हैं लीवर में। इतना ही नहीं, आप जो जाके पिज्जा, बर्गर, कोक, ऐसा जंक फूड जो खाते हो ना, वो भी, यहाँ तक मैगी भी। बासी खाना, हम भारतीय लोग जो है ना, बासी खाना उचित नहीं समझते, है ना। और मैगी बासी खाना है, पूरा हर एक जंक फूड बासी खाना है। हमें लगता है कि गरम गरम पिज्जा आ गया, नो, उससे पहले कई महीने पहले वो पिज्जा बेस बन के तैयार है उनके पास। बर्गर में जो टिक्की डाल दी जाती है, वो भी ऑलरेडी हाफ कुक्ड उनके पास तैयार है। हम जब ऑर्डर देते हैं तो हाफ कुक करके वो दे देते हैं, बचा हुआ कुकिंग प्रोसेस जो है वो बना के दे देते हैं, और हमें लगता है कि हमने तो गरम गरम खाया है। कोक, वो भी तो बहुत तेजी से लीवर को डैमेज कर रहा है। स्टैटिस्टिक निकाला गया है कि जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स का है, कहने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स है लेकिन वो बहुत ही हार्ड ड्रिंक्स है, और वो जो भी ले रहा है उसका लीवर 100 नहीं 1000% डैमेज होना ही होना है। आज ही अपने बच्चों को प्लीज इसके बारे में बता दीजिए कि लीवर इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हमारे बच्चे जो हैं ज्यादातर जंक फूड खा रहे हैं, कोक जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं, और तीसरा बहुत देर तक रात में जाग रहे हैं, स्क्रीन पे है। ये तीनों की वजह से लीवर डैमेज होना ही है। और साथ में हमारे इंडियन कल्चर में एक ऐसा है ना कि कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता, पता नहीं क्यों, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। ऐसा आपने डायलॉग सुना होगा कि घर पे किसी का सर दुख रहा है कि अरे बाप रे सर दुख रहा है तो ये ले लो ना, क्रोसिन ले लो ना, हम ही खुद डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि सिंपल पैरासिटामोल या क्रोसिन ये भी आपके लीवर को डैमेज कर रही है। हर पेन किलर आपके लीवर को डैमेज कर रहा है। यहाँ पे जितने कॉजेस दिए हैं उससे भी भयंकर कॉजेस हम डे टू डे लाइफ में जी रहे हैं, तो उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एक जगह पे बैठे रहना, वजन बढ़ रहा है, इसकी वजह से भी आपका लीवर डैमेज हो रहा है। सबसे पहला स्टेप होता है फैटी लीवर हो जाता है, और उसके बाद फाइब्रोसिस हो जाता है, उसके बाद फिर सिरोसिस, नेक्रोसिस, सो मेनी डेंजरस स्टेजेस आर देयर। और ये सिर्फ लीवर ही डैमेज नहीं होता, तो उसके साथ साथ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है ना वो भी डैमेज हो जाती है। मतलब हार्ट को भी ये अफेक्ट करता है, किडनी को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि देखो ना कितने सारे केमिकल्स हो गए हैं लीवर में, इसी वजह से वो डैमेज होते जा रहा है, क्योंकि वो डिटॉक्स नहीं कर पा रहा है। और किडनी का भी वही काम है कि हमारे बॉडी में जितने भी इम्प्योरिटीज है उसको निकाल दे, फिल्टर कर दे, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ आने की वजह से वो भी डैमेज होने लग रही है। साथ ही में बोन हेल्थ जो है वो भी अफेक्ट हो जाती है। ब्रेनल डिसीजेस को भी हम इन्विटेशन दे रहे हैं, और स्लीप डिप्रिवेशंस या अल्जाइमर ऐसे जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाते हैं, इवन पार्किंसंस, ये सारी चीजें हमारे लीवर के हेल्थ से जुड़ी हुई है। क्या करना चाहिए? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना चाहिए? भरपूर फाइबर लेने चाहिए खाने में। ऑफ कोर्स वो केमिकल्स के साथ है नहीं है वो तो भगवान जाने। बहुत ज्यादा पानी पीना है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स अक्युमुलेट हो जाते हैं उसको बाहर निकालने की क्षमता हम में पैदा हो जाए। उसके बाद आपके वेट को मेंटेन करना है, और स्लीप, प्रॉपर स्लीप लेना बेहद बेहद जरूरी है, जो कि हम नहीं ले रहे हैं। क्या नहीं करना चाहिए? इसके अपोजिट, जंक फूड, फास्ट फूड, इसको कंप्लीट बैन कर दो, शुगर कट कर दो, कोई भी अल्कोहल या सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है
उसको बाय बाय, टाटा बाय बाय कर दो और स्मोकिंग को अवॉइड कर दो और स्ट्रेसफुल लाइफ जीना छोड़ दो, जिसकी वजह से आपके हर एक डिसीज कंडीशन को इनविटेशन मिल रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इतना ही है क्या? नहीं, एटॉमी के पास एक बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन है और उसका नाम है मिल्क थिसल। ये मिल्क थिसल हमारे लीवर को एक प्रोटेक्शन देता है, इतना सही तरीके से उसको डिटॉक्स करने में मदद करता है, उसके जो सेल्स है उनको वो एनहांसमेंट दे देता है। क्यों? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। मिल्क थिसल ये एक बेहतरीन हर्ब है जो कि सिलिबम ग्रुप से आता है और इसका जो पर्टिकुलर एक्टिव प्रिंसिपल है वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, एंटीवायरल के तौर पे काम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पे काम करता है और आपके लीवर के सेल्स को एनहांसमेंट देता है। एनहांसमेंट, यस। प्रोटेक्शन, लीवर प्रोटेक्शन के तौर पे ये वेल नोन है, मतलब इसका जिक्र चरक संहिता में भी है और ऑफ कोर्स कोरियन जो हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने भी इसको बहुत बखूबी इसको पिक किया है और लीवर के प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। पहले जमाने में चाहे वो साउथ कोरिया हो या इंडिया हो, ये मिल्क थिसल जैसे ही कुछ मतलब डाइजेशन के बारे में कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो इसका दूध निकाल के पिलाया जाता था। अब हमारे पास टैबलेट फॉर्म में ये मिल्क थिसल उपलब्ध है। ये लीवर के इन्फ्लामेशन को कम कर देता है। देखो, जब भी केमिकल्स एक्युमुलेट हो जाते हैं तो वहां पे इन्फेक्शन तैयार हो जाता है और उसको कम करने के लिए मिल्क थिसल बेहतरीन काम करता है। ये टॉक्सिन्स के अगेंस्ट काम करता है। ये लीवर का जो मेटाबॉलिज्म करने का जो तरीका है वो मेटाबॉलिज्म को हेल्दी बना देता है और डिटॉक्स करने के लिए बेहतरीन तरीके से हेल्प करता है। कैसे लेना है? 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे, आफ्टर फूड या बिफोर फूड, आधा घंटा पहले या बाद में लेना है। तो ये हो गया हमारा मिल्क थिसल। नाना बिल्कुल नहीं हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ अनकवर्ड चीजें मैं आज आपको मिल्क थिसल के बारे में बताने वाली हूँ जिसकी चर्चा आमतौर पे नहीं होती है। ध्यान से सुनिएगा, इसकी कोई स्लाइड नहीं है बट मुझे लगा कि ये बताना बेहद जरूरी है, इसलिए 2 मिनट में मैं बता रही हूँ। ये एक्चुअली हमारे ब्रेन की न्यूरॉन्स पे भी काम करता है। ओके, तो जिसको भी ब्रेनल कोई भी प्रॉब्लम है या फिर इवन स्लीप डिप्रिवेशंस भी अगर आ रहे हैं, अल्जाइमर जैसी चीजें हैं, तो वहां पर भी आप मिल्क थिसल यूज कर सकते हो क्योंकि ये ब्रेनल फंक्शन को एनहांसमेंट देता है। साथ ही में ये ब्लड शुगर को लोअर कर देता है, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बाद बोन हेल्थ, जहां पे आपको डिटोरिएट दिखाई दे रही है वहां पे ये बोन हेल्थ को एनहांसमेंट देने में ये बेहतरीन तरीके से सपोर्टिव काम करेगा क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है किसको? मिनरलाइजेशन, मतलब मिनरल्स जो होते हैं जिसकी वजह से हमारे बोन्स पावरफुल बनते हैं, उसको सिंथेसिस करने में ये बेहतरीन तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसीलिए जहां पर भी आपको लगे कि यहाँ पे बोन हेल्थ कमजोर जा रही है वहां पे आप दे सकते हो। उसी के साथ एक बहुत ही न्यू स्टडी आया है मिल्क थिसल के बारे में और वो ये है कि ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग पे जो लैक्टेटिंग मदर्स है उनको भी ये मिल्क थिसल दिया जा सकता है, ट्वाइस अ डे नहीं, वंस अ डे, जिसकी वजह से उनका लैक्टेटिंग पीरियड जो है ना वो बेहतरीन हो जाए। ओके, डाइजेशन इंप्रूव कर देता है ये और हार्ट के लिए भी ये हेल्दी साबित हो चुका है। हार्ट में जो भी मायोकार्डियल इंप्योरिटीज होती है उसको डिटॉक्स करने में भी ये बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है। एंड ऑफ कोर्स कैंसर की ट्रीटमेंट जिसको भी शुरू है, हमें सर्वश्रुत है, मतलब हम सब जानते हैं कि हीमोहिम कैंसर लोगों को देना है ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए वगैरह। माय डियर फ्रेंड्स, अगर
कैंसर पेशेंट्स आपके कोई जान पहचान में है, आजू बाजू में है, फ्रेंड्स में है, तो उनको मिल्क थिसल से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि लीवर कैंसर सेल्स जब भी केमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी दी जाती है तो सबसे पहले डैमेज होने वाला अगर कौन सा ऑर्गन है तो वो है लीवर। उसको अगर ठीक रखना है तो आपको मिल्क थिसल देना बहुत जरूरी है। साथ ही में ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से एक्ने जैसे डिसीज कंडीशन में भी ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मिल्क थिसल। अब हम चलते हैं दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं और वो है स्पायरुलिना। जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, पहले ही हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि स्पायरुलिना 100% प्योर स्पायरुलिना एटमी का, और ये सच में इतना प्योर फॉर्म में हमें दे दिया गया है एटमी की तरफ से, थैंक्स टू एटमी। क्योंकि ये स्पायरुलिना क्या होता है ना, थोड़ा सा अजीब ही स्मेल करता है, बिटर स्मेल होता है इसका। बिटर भी नहीं बोल सकते, फॉल स्मेलिंग होती है इसकी, लेकिन हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऐसा है कि उसमें ओडरलेस ग्रीन, ब्लू ग्रीन फ्रेश वाटर में कल्टीवेट किया हुआ हमें स्पायरुलिना मिल रहा है। इसका तो इतिहास अगर देखा जाए, हिस्ट्री अगर देखी जाए तो 3.6 बिलियन ईयर्स की हिस्ट्री है इसकी। कछुआ देखा है आपने, कितने साल जीता है कछुआ? कम से कम 300 से 500 साल। क्यों जीता है? क्योंकि वो स्पायरुलिना सुपर फूड खाते रहता है। वैसे ही हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो अगर स्पायरुलिना से हमें मिल रहे हैं और वो भी प्योरेस्ट फॉर्म में, तो डेफिनेटली ये एक अल्टीमेट सॉल्यूशन हो सकता है हमारे लॉन्ग लाइफ का एंड हेल्दी लाइफ का। नॉट ओनली लॉन्ग लाइफ, दैट लाइफ वुड बी हेल्दी लाइफ। ओके, तो ये जो स्पायरुलिना है वो बेहतरीन तरीके से हमें एक न्यूट्रिशन के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं अपने पेशेंट्स में जब दे रही हूँ तो ऐसा लग रहा है ना कि उनकी रिकवरी फास्ट होते जा रही है, बिकॉज उनका जो भी न्यूट्रिशनल लैक ऑफ न्यूट्रिशन जो है, जिसकी वजह से उनको कोई डिसीज कंडीशन फेस करनी पड़ रही है, वो तो न्यूट्रिशन यहाँ से पूरी फुलफिल्ड हो रही है। सो ये एक बेहतरीन सॉल्यूशन हो सकता है हर एक के लिए, क्योंकि अभी हमने देखा कि अनाज का एक भी दाना ऐसा नहीं है जो केमिकल फ्री है। और रोज जो हम सब्जी रोटी दाल चावल खा रहे हैं, आपको क्या लगता है इससे हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट हो रहा है? नहीं। तो उसके लिए कुछ अलग न्यूट्रिशन लेना बेहद जरूरी है, और वो चीज फुलफिल्ड होती है हमारे इस स्पायरुलिना की वजह से। ये क्या करता है एक्चुअली, स्पायरुलिना के बेनिफिट्स इतने ज्यादा है, लेकिन ये ब्रेन एंड बॉडी ये दोनों को भी साइमल्टेनियसली सपोर्ट करता है। इसमें 50 to 70% प्रोटीन है। ओ माय गॉड! और हमें पता है कि इंडियन बहुत कम ध्यान देते हैं प्रोटीन डाइट की तरफ। जो जिम में जा रहा है वही थोड़ा सा कॉन्शियसली प्रोटीन डाइट लेता है, अदरवाइज हम में से कोई भी नहीं लेता है। रियली सॉरी टू से, लेकिन अभी अवेयरनेस आ गया है, हमें ये पता चल गया है कि हमारे सेल का हर एक कवरिंग जो है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, और प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके वजन के अनुसार रहता है वो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी का अगर 70 kg वेट है तो उसको 70 ग्राम खाना जरूरी है। उतना सच में जाता है क्या, चेक करने की जरूरत है। चेक भी नहीं किए तो भी चलेगा, सिर्फ ये स्पायरुलिना खाना शुरू कर दो, हर एक चीज आपको नॉर्मल हो जाएगी। स्पायरुलिना में पेक्टिन होता है जो कि सॉल्युबल डाइटरी फाइबर होता है, और वो 95% डाइजेस्टिव
एब्जॉर्प्शन को अलाउ करता है। मतलब क्या है कि आप जो भी खा रहे हो उसको एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो 95% कैपेसिटी वो बढ़ा देता है। और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। 18 टाइप्स के अमीनो एसिड्स है, 14 टाइप्स के फैटी एसिड्स है, जिसे हम मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल ये जो बोलते हैं ना वो। और अमीनो एसिड का क्या मतलब है? प्रोटीन की ब्रिक्स जो होते हैं, प्रोटीन कहाँ से बनता है? अमीनो एसिड से बनता है। और अमीनो एसिड कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। कि कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, मैंगनीज है, जिंक है, सोडियम है, कॉपर है, पोटेशियम, ये सारे जो मिनरल्स होते हैं हमारे बॉडी में बहुत अलग के ऊपर वो अच्छे से काम करने के लिए वहां पे आते हैं। 12 टाइप्स के विटामिन है, ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन, विटामिन ए, बी, सी, डी, एवरीथिंग, इवन बी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद विटामिन डी तक है इसमें। और ये 4 टाइप्स के एंटीऑक्सीडेंट्स को भी कैरी करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या है? जो हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर दे। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? जब भी हमारे बॉडी में कुछ फॉरेन बॉडी, मतलब जो हमारे बॉडी के अनुसार नहीं है, ऐसी कुछ चीजें आ जाती है, जैसे कि केमिकल्स है, फर्टिलाइजर्स है, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे बॉडी को सुटेबल नहीं होती है। तब जब हमारे बॉडी में आ जाती है तो फ्री रेडिकल्स डेवलप हो जाते हैं, और उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज हमारी बॉडी प्योर फॉर्म में। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट्स का हमारे खाने पीने में रोज बेहद जरूरी होता है। Am I audible? My internet connection is not shaking ऐसा बता रहा है। Okay. Hello, am I audible? Hello. Anybody please tell me? Okay, thank you sir. अब ये स्पारुलिना जो भी मतलब हमारे इसमें आ रहा है वो किस तरीके से काम करता है? हाईली न्यूट्रिशियस है, वो क्या करता है? हमारा माल न्यूट्रिशन कम कर देता है। हाई एंटीऑक्सीडेंट्स है इसमें, जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम कर देता है, मैंने अभी बताया। इजी टू डाइजेस्ट, जिसकी वजह से हमारी गट हेल्थ प्रॉपर हो जाती है। ये अल्कलाइजिंग एंड डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टी रखता है, जिसकी वजह से ये लीवर को भी सपोर्ट करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी होने की वजह से जो भी एलर्जिक कंडीशंस या जो भी इंफेक्शियस कंडीशन हमारे बॉडी में आ रही है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। और कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन का ये बेहतरीन तरीका हो सकता है, जिसकी वजह से ये आपकी हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। इस तरीके से हमारा ये जो स्पारुलिना है वो हमें सपोर्ट करते रहता है। कैसे लेना है स्पारुलिना? अगर लेना है आपको तो 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा क्लू देना चाहूंगी कि किसको देना चाहिए। सबसे पहले तो अपने बच्चों को शुरुआत करो, ओके? जो 15-20 साल से ऊपर है उन सबको स्पारुलिना शुरू करो, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बचपन से हमने सुना है ना, देखा है ना कि लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, ग्रीन सब्जियां खानी चाहिए, हरी सब्जियां बहुत ज्यादा हमारे खाने पीने में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमारे बॉडी में क्लोरोफिल नहीं बनता है, और क्लोरोफिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे बॉडी में, जो कि बहुत सारे
बॉडी फंक्शंस को नॉर्मल कर देता है। ये प्रोटीन का सोर्स है, इससे पहले बताया मैंने 60% प्रोटीन इसमें है और विदाउट एनी कैलोरीज ये आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में भी ये कामयाब हो सकता है। हाई डाइजेस्टिव फाइबर होने की वजह से जितने भी आपको डाइजेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, नॉशिया है, कभी कभी वॉमिटिंग्स होते रहते हैं, मॉर्निंग सिकनेस होते रहता है, ऐसे में ये स्पाइरुलिना बेहद बेहतरीन तरीके से काम करता है। रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स होने की वजह से इसको लेना ही लेना है। अब फाइकोसियानिन ये जो है 600 mg पर 100 ग्राम मोर देन हमें मिलता है इस स्पाइरुलिना में, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पाइरुलिना में ही है। एंटीऑक्सीडेंट प्लस एंटी इन्फ्लामेशन दोनों का काम करने वाली एक ही ये फैमिली है, जिसमें हमें मिलता है कि फाइकोसियानिन ये मिलता है हमें, और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी काम करता है। इसमें क्लोरोफिल होने की वजह से 1000 mg पर 100 ग्राम, यू कैन इमेजिन कि कितने ज्यादा क्लोरोफिल मिल रहा है। मतलब हमारे बच्चे अगर लीफी वेजिटेबल्स नहीं खा रहे तो अभी माओ को चिंता करने का कोई विषय नहीं है। नहीं खा रहा है तो पालक की सब्जी पसंद नहीं है, ठीक है, रहने दे, आलू खा ले, लेकिन साथ में एक स्पाइरुलिना ले ले, राइट? तो तुम्हारी जो भी फुलफिलमेंट होनी है ग्रीन वेजिटेबल्स की, वो यहाँ से कंप्लीट हो रही है। इसमें बीटा कैरोटीन है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मिल रहा है, और जो कि आपके आईज के लिए भी अच्छा है और स्किन के लिए भी अच्छा है। तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स के साथ, ऐसे न्यूट्रिएंट्स के साथ हमें ये स्पाइरुलिना मिल रहा है। और डेफिनेटली हमारे अटामी की एक खासियत है कि जो प्योर है, जो हेल्दी है, जो नॉन अडल्ट्रेटेड है, बस वही हमें दिया जाता है। इसीलिए मैं बाकी आप बाहर जाके देखेंगे, हर एक कंपनी ने ऑलमोस्ट स्पाइरुलिना निकाला है, लेकिन जितनी प्योरिटी हमारे अटामी में है उतनी प्योरिटी शायद किसी भी कंपनी के स्पाइरुलिना में नहीं है। मैंने काफी कंपनियों के स्पाइरुलिनास टेस्ट किए हैं, लेकिन ये जो है अफलातुन है, बेहतरीन है, मतलब बियॉन्ड वर्ड्स है। ओके, कैसे लेना है हमने बता दिया। 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे लेना है, एडल्ट्स ले लेना है, मतलब 15 से 20 के ऊपर हर कोई ले सकता है। ओके, तो इस तरीके से हमने आज 2 प्रोडक्ट्स कवर किए हैं। अगर आपको इन 2 प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कुछ भी सवाल आ रहे हैं तो प्लीज फील फ्री टू टॉक विथ मी। सुनील चौहान एजेंट, यस सर, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप बात कर सकते हैं। थैंक यू मैम इनवाइट करने के लिए। मेरा एक सवाल था, आप मिल्क टिसल और स्पिरुलिना वेट लॉस के लिए चलेगा क्या? दौड़ेगा। और कौन सा सप्लीमेंट वेट लॉस के लिए, ये 2 छोड़ के और कौन से सप्लीमेंट हम दे सकते हैं? देखो, वेट लॉस एक बीमारी है ऐसा हमें लगता है, बट वेट लॉस जो है वो 3 रीजन की वजह से हो रहा है। पहले वो रीजंस हमें डिसॉल्व करने होते हैं मेडिसिन के साथ। लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है, देन लैक ऑफ न्यूट्रिशन नहीं, लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो भी आपका वजन बढ़ता है। दूसरा होता है अगर आपकी मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो होता है, या फिर आपका बहुत इनटेक है और यूटिलाइजेशन कम है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। ये तीनों में से कौन सा रीजन है ये पहले फाइंड आउट करिए, और जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो उसके साथ साथ ये दोनों देना है, ताकि उनके लीवर का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और साथ ही में ये न्यूट्रिएंट्स मिलने की वजह से
आपको ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जनरली कैसा होता है ना, ओबेसिटी में हम अपना खाना कम कर देते हैं सबसे पहले। आपने देखा होगा, नहीं मैं डाइट पे हूँ, मैंने चावल छोड़ दिया है, मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है, मैंने ये किया है वो किया है, हम ये सुनते हैं ना। एक्चुअली होना ये चाहिए कि आपको बैलेंस्ड डाइट लेना है। ओके, तो उसके साथ अगर बैलेंस्ड डाइट की मैं बात करूं तो ये स्पारुलिना बेहतरीन बैलेंस्ड डाइट है, आप आराम से ले सकते हो ये। ठीक है मैम। और एक सवाल था, जिनका भी काम बैठे बैठे रहता है, हाँ। और बैठे बैठे काम है, एक्सरसाइज भी नहीं है, और उनको प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी तो स्पिरुलिना हम दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ, उनका टाइम कैसा रहेगा देने का? काम करते रहो या ना रहो, टाइम एक ही रहेगा। आधा घंटा आपका पेट खाली होना चाहिए। हाँ, शाम को डाइजेस्ट सिस्टम के लिए प्रॉब्लम करता है, शाम को देते वक्त चलेगा क्या? हाँ, ठीक है कोई थैंक यू दिक्कत मैम। जी जी जी। श्रीकांत जी, आपने हैंड रेज किया है, आपको कुछ पूछना है? आप अगर वीडियो ऑन करते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि पता चले किससे बात हो रही है। थैंक यू सो मच जी। मैडम ये पूछना था कि इसका खाने का उचित समय क्या रहता है? खाना खाने के पहले फायदा करती ज्यादा, खाना खाने के बाद? सी आधा घंटा खाली पेट होना चाहिए, आप कभी भी खाओ। जी। जब ओबेसिटी के लिए, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब ओबेसिटी के लिए देती हूँ तो खाना खाने से पहले देती हूँ, ताकि उनको भूख कम लगती है और न्यूट्रिशन कंप्लीट चला जाता है। लेकिन अगर आप सेहत बनने के लिए दे रहे हो तो आप खाना खाने के बाद आधे घंटे से दिया करें, ठीक है? या विनोद जी, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप बात कर सकते हैं। हेलो विनोद, एजेंट विनोद, आपको अनम्यूट कर दिया गया है जी, बात करिए। ओके, दिनेश जी, आपने भी हैंड रेज किया है, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। गुड इवनिंग।